second call is disconnected. So we use SQL connection, SQL command, SQL data, reader, and the very most important class was graphing parameters. Dot add with value. The most important one. You go for any interview, you make any projects, you want to call procedure by the parameters. How we can call parameters? CMD dot parameters dot add with value. So that is most important. So we required today, from today, a 3 to 4 class for this connector. That's called ADO.NET, and we use that part in mainly in WCF and web service. In advanced topic, आपको advanced करना है मुझे, ठीक है? चलो, मतलब हो गया ठीक, रात में करवाया इसको ठीक। नहीं, इसमें गैस लीक हो रहा था, इसलिए आना जाना तो इसमें चल रहा था। So, what is disconnected mode? Think logically. And what is connected mode? This is called ADO.NET. If someone asks you, what is ADO.NET? Don't go for connected mode. Because connected mode was available in ADO. What is C#? Properties, indexer, reflection, delegate, callback, exception handling, collection, generics is called C#. If conditions, for loop, do while loop is not C#. It is available in what? C. We can use in what? C#. Similarly, what is ASP.NET? State management, page life cycle, and how we can request any web page is called ASP.NET. So what is an ADO.NET? Why you like this ADO.NET? What is the best part in ADO.NET which you can go for? This is the best part of ADO.NET. Don't try to go for this part. Because this part is already available in what? समझे? आज आपकी मेन टॉपिक शुरू होगा। यहाँ से कर दो आपका ADO, और ये वाला पार्ट क्या बोलो? So you can use ADO in what? ADO.NET. You can use C in C#. You can use C++ in C#. Reading everyone? So concentrate for next 1 hour and listen very carefully. It's a very first class today. There are two ways I can make a front end in .NET. There is a front end, whether you go for console, window or web, hardly matter. If you know console, convert into what? Window button, and convert into what? Web page button. So easy to do. There is a front end and there is a back end. What is in back end? Database server. It might be Oracle and SQL server. There is a console, there is a window, there is a web. And you can expertise in web, attending a batch of Saxena in every Sunday. He will take 5 or 6 class, he will polish you in web technologies. So it's a web. It's called web page, so easy. Drag and drop the controls and click on a button and go for saving a record, whatever you do. If you are fetching a data, explain what is connected. If I am fetching a data,
If I am fetching a data directly from database server, if I am fetching a data directly from database server, means no intermediate process, between the front end and back end. The connected mode, normal English is directly. What? Directly. I am taking a current by extension cord. It's not directly. I am taking current directly from electric pole. Directly from electric pole is called connected mode or directly. I am taking a current via extension cord is called indirectly. Connected mode means continue in a process or directly from database or no any intermediate process between. I am going to bank, talking about a debit card processing and credit card processing and home loan. I don't want any interface between me and the bank. इसको एजेंट. मैं डायरेक्टली किसी मकान के ऑनर से बात कर रहा हूँ किराए के लिए. मैं किसी बीच के बंदे से बात नहीं कर रहा हूँ. तो पहले कनेक्टेड मोड को एक नॉर्मल लाइफ में लेकर आओ. मैं डायरेक्टली इस बच्चे से बात कर रहा हूँ, इसके फादर के द्वारा से बात नहीं कर रहा हूँ. If data is directly coming from database or if data is directly moving from front end to back end, in between no any interface, no any intermediate process, this phenomena is called connected. There are several advantages if I go for directly connectivity. Obviously, definitely. What are those advantages? There is a table in this database. There are few columns in this table. There are several records in this table. Several records. One, Neha, MC. Similarly, we have a couple of records. There is a front end, hardly matter. We go console, window or web. Difference only look and feel. Nothing else. Flexibility, some features regarding controls, better look and feel, not more than that. Now, I click on button called retrieve. R for retrieve. I click on a button called retrieve. I am getting data directly from table of database. I am directly getting a data from table of database. Means, if any updation occur in table, if any updation is made in table, it can directly affect to my front end, because there is a direct communication, no agent, no interface, no partitioning in between anyone. Now she is getting Neha. In table of database, someone changes the data like Neha Jain. If I click on retrieve, it can immediately affect to me, not Neha, to Neha Jain, because I am directly but in process. I appreciate to work in connected mode. I really appreciate to work in connected mode. It depends on project.
It depends on project. So when Saxena will give you project and you will start attending his class of project training in every Sunday. First of all, sit and think about project. What is the name of the project? I saw online shopping. I saw online banking. If you talk about online, it's a direct connectivity. Because in those scenarios, obviously, data will change frequently. But college level project, I don't think so. Every day, college will have admission. Never. It is a BTech or MCA, not nursery school or any primary school. In 12th level, BTech level, MTech level, there is a time period for taking admission. So I want to make a front end where I want to go for switching the data of MCA second semester students table. MCA second semester, we have 90 admissions. Ensure that in this table nothing will change in future. Why do we go for disconnected mode then? Or why do we go for connected mode then? You have to think of what is your project and title of the project. Why do we go for connected mode here? I know this table will have 90 records of MCA students second semester. I am telling myself personally. Because Saxena will make your project, will not guide you in every moment and every point. You have to think of, in this scenario, shall I go for connected mode or disconnected? So, if project is of college level, shop level, because any company in this world does not make any item every second. Rin Sabun, I don't know who is a manufacturer of Rin, but I can't think so that company every seconds makes a new product. Every second they makes a Rin Sabun, and not new products every moment. So, who is my client? Who is my project? Name signify to me, shall I go for connected mode or disconnected? But if the word comes into picture, online transaction, online shopping, I have to go for connected. So, it's very tough time in an interview by third round. And I have seen in NCR for the last 6 years, many students of coaching center, the result from third round is called project round. The written test is very easy. They will give you some SQL queries, questions, group by joining, function, procedure, unique transactions. You can do this. Second round, बच्चा वाला assembly क्या है, data set क्या है, ASP.NET क्या है, they can. Third round, those who can face, who really had made a project. The students joins in a coaching center, they take faculty as a granted, they take Saxena as a granted. Only 5 to 10% students really makes a project. With honesty, with the time consumptions, with the proper efforts. I have seen my center, mostly developers are getting better job. They knows
what is in third round. And they are not coming for third round because they are already working in what projects like this like our system also. Why is here only for first round and second round? How we can go for technically more strong. I cannot think Jhankar to make a project because you are working for last 14 years in making the projects. So developers are really good for making the projects, but less somewhere I have seen, I have feel, less somewhere they are not good in technically strong. So they want to go for balancing. So my focus is to all the guys and the girls in the batch. You attend the Saxena batch with the honesty and make the projects. Because first round, second round, third round, you are out. Ultimately, what is the output? Zero. We see only one word, output is what. So you take a project name, you start making the tables and making a front ends. I don't think so. You want anyone help. Look at your mother. She makes everyday khana for everyone. Every day she makes a project. She don't want to take any help or anyone help. She wants to take help only by minimizing the stress and the force. Otherwise, she knows how to make a khana and all that. So, I don't think so. You want to take anyone help. If your order is better, take a project, make multiple tables, make a multiple web page, start making the projects. You don't need to wait for next 7 days by Saxena. You will come, you will go for making the projects and all that. You do your work, you will do your own work. So, when I will go for connected or disconnected, well, that's most important. So, table, record, does not change frequently. If table record does not change frequently, if table record does not change frequently, I don't think so. You have to be always online. Online is called connected mode. Offline is called disconnected. So, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है थर्ड राउंड पे. इसे अंदर मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे एनसीआर के थर्ड राउंड से रिजेक्ट हो गया, चाहे मेरे बच्चे हों या किसी और सेंटर के बच्चे को. तुमने अपने प्रोजेक्ट में कनेक्टेड मोड यूज क्यों किया? उसको अगर कनेक्टेड मोड आता है तो मुझे पढ़ा देगा बैठ कनेक्शन कमांड. आप किसी को खड़ा करके देख लो, बदला देगा. हमने इसलिए कनेक्टेड मोड करा कि मेरे टेबल का रिकॉर्ड फिक्स नहीं है, वो डायनामिक है. वो डायनामिक है, वो चेंज हो सकते हैं. अगर वो चेंज हो सकते हैं, मैं कभी बात नहीं करूंगा तुमसे किसी इंटरफेस के द्वारा. हमें डायरेक्टली मकान मालिक से मिलवाओ. तो ये आपको सक्सेना से गाइड नहीं करेगा. आपको प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस लेना है और 3-4 दिन तक उसको केस स्टडी करना है. और बनाना बेटे काफी इजी. मेन है केस स्टडी कि करना क्या इस प्रोजेक्ट, कब किसको कहा यूज करना. डिस्कनेक्टेड में आप ये देखो डिस्कनेक्टेड कब हो सकता है और आप ये देखो कनेक्टेड कब हो सकता है. एक तो देख लिया, अगर रिकॉर्ड चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंटली, यू गो फॉर कनेक्टेड. सेकेंड, ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन करना है. लेन देन बिजनेस टर्म्स, ट्रांजैक्शन का सिंप्लीफाइड हिंदी होता है लेन देन. अगर लेन देन करना है तो आप फिर कनेक्टेड मोड ले. आप डायरेक्टली करो, बेटर है. हमें इसको पैसा देना है, हम इसके द्वारा क्यों, हम डायरेक्टली तुमको दें. मकान मालिक को चेक काट के देना है, हम आपके बैंक में ट्रांसफर कर दें. जहां आपको ट्रांजैक्शन करना है आप कनेक्टेड मोड पे, समझ गए.
जहाँ रिकॉर्ड फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, आप कनेक्टेड मोड पे हो। तो पूछेगा ट्रांजेक्शन मतलब, सर मुझे इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है अपने फ्रंट एंड से, मुझे इंसर्ट करना है अपने फ्रंट एंड से। हम डायरेक्टली करेंगे, बोलो किस पे? ठीक है, अब शुरू होती है आज की क्लास। एक तो बिल्कुल तय हो गया, अगर डिस्कनेक्टेड की बात उठेगी तो मेरे और डेटाबेस के बीच में डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं। If I talk about disconnected mode, one thing is confirmed between me and database. No any physical connectivity is there. उस केस में क्या हो सकता है? अगर कोई रिकॉर्ड टेबल में चेंज होते हैं, नेहा को नेहा ज्वाइन कर दिया और किस पे काम किया? डिस्कनेक्टेड पे। तो मैं रिकॉर्ड डायरेक्टली उस बंदे से नहीं ले रहा हूं, डेटाबेस से, मैं किसी के द्वारा ले रहा हूं। तो डिस्कनेक्टेड में आपको वो समझना है कि आपके और बीच का बंदा कौन है। अब तक आपको मैंने सुबह की 3-4 क्लासेस दी, आपको ये सिखाने का ट्राई करा उस एंड पे कौन है डेटाबेस, उस एंड पे टेबल है, उस एंड पे फंक्शन है, उस एंड पे प्रोसीजर है, उस एंड पे ट्रिगर है। मैथमेटिक्स बोलता है अगर बंदे को प्रोसीजर कॉल करना आ गया तो फंक्शन भी कॉल कर सकता है और ट्रिगर भी कॉल कर सकता है। एसक्यूएल कमांड क्लास की डबल कोर्स में क्या लिखते हो? प्रोसीजर का नाम, तो फंक्शन का नाम लिख दो यार। डोंट बी पैनिक, ये वेट फॉर डेटाबेस क्लास में। पर लॉजिक बोलता अगर 5 टॉपिक में से अगर एक कॉल करना आ गया, ऑब्वियसली अब पैनिक उतना नहीं होगा और रिमेनिंग कर सकते। अच्छा, डिस्कनेक्टेड का मतलब ये हो गया, वन थिंग इज कंफर्म कि मैं डेटा डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं लेता। नहीं आता समझ में और इसको सिंप्लीफाइड करो। मैं कोई भी कार आज के डेट में डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकता मैन्युफैक्चरर से। वो बताओ आपके टाउन में, आपके शहर में क्यों अपॉइंट करते हैं डीलर्स को? अब नोएडा 12-22 में जाओ, 90% आपकी जो मकान की डीलिंग होती है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा होती है। उनका ऐसा लॉजिक होता है। एक मकान मालिक ट्रस्ट नहीं कर सकता किसी रेंटर के ऊपर। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा तुम अच्छी या खराब, वो भाई रेंटल एग्रीमेंट बनाता है, किसी बंदे को हायर करता है, डीलर्स को, उसके द्वारा अपॉइंट करता है। तो डिस्कनेक्टेड अगर बोलना है तो पहले मन में ये लाओ कि आई एम नॉट गेटिंग अ डेटा फ्रॉम डेटाबेस, then to whom I am getting a data? To whom I am getting a data is a great man called data set. मैं जो बोल रहा हूं हर वर्ड पे खो जाओ कि what is disconnected mode? Sir, disconnected mode means I am not getting a data directly from database. I am getting a data from data set. It means data set is a intermediate process between front end and back end. आपको नींद आ रही है, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, थप्पड़ मार लो गाल पे, कोई दिक्कत नहीं। ये दोबारा आपको संदीप करण इस वक्त नहीं मिलेगा।
डिस्कनेक्टेड मीन्स मैं क्या पढ़ूं डिस्कनेक्टेड में यार, क्या पढ़ूं मैं? नहीं, तुम पहले ये सोचो तुम डील किससे करते हो। मानो लड़की एजेंट है और अंकल का मकान है, मकान में कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपको पकड़ूंगा। मैं मकान मालिक को नहीं जानता, इज इन अमेरिका। मेरा डील आपसे हुआ, आप उनसे डील करो, हम उनसे बात क्यों करें? इसके बाद मुझे आपको फिर समझना पड़ेगा आप वो कौन, हु आर यू फर्स्ट। तो मुझे अब डेटाबेस को नहीं समझना है, डेटा सेट को समझना है। तो फंक्शन है, प्रोसीजर है, ज्वाइनिंग है, लाजवाब का भी ट्रांजैक्शन है, देन इजी ऑफ कर्सर है। पता लोगों को कर्सर तो टफ लगता है। आप कल मेरी क्लास करोगे कर्सर की तो इतना इजी था। अरे बेटा कर्सर एक पॉइंटर है। मैं टॉपिक से बाहर निकल रहा हूं 2 मिनट के लिए। कर्सर का एक पॉइंटर है कि 2 आंख से, ये मत को मेरे पास एक आंख है, 2 आंख और ये एक आंख है, सब्जेक्ट एक ही हो। 6 गाना मेरे पास विंडो मीडिया प्लेयर में, और कर्सर आप डेली कर्सर यूज करते हो। तब अंदर बच्चे कर्सर नहीं बोल पाते अंदर। पता नहीं कर्सर को इतना हाई बना के क्यों रखते हैं डेटाबेस। दीपक झा का सिलेक्शन कर्सर से हुआ है और ट्रांजैक्शन से हुआ है। उसने अच्छा कर्सर इसलिए बोला कि डोएक का बच्चा है, उसे डोएक से बी लेवल करेंगे, और डोएक की सोसाइटी में सी की पढ़ाई अच्छी खासी होती है। उसका आंसर सुनो। उससे मैंने पूछा था बेटे ने क्या जवाब दिया। मैं डेवलपर से ये पूछता हूं तुमने क्या जवाब दिया, और मैं अपने जवाब से कंपेयर करता हूं, और कभी सीखने का मौका भी मिलता है। उसका सिंपल आंसर सुनो, उसने क्या बोला, कर्सर। कर्सर ये 6 रिकॉर्ड्स, 6 गाना एक विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर, स्पीकर भी है, साउंड कार्ड भी है। अगर कर्सर मिसिंग है आप गाना नहीं सुन सकते। सेकंड, कर्सर, हम कर्सर को लाके पहले क्लिक करते हैं जोर से। सेकंड, आपका पहला गाना शुरू हो गया, सेकंड गाना की जब बारी आई तो कर्सर जो है नीचे आ गया। अच्छा, कर्सर नीचे आ गया, फिर क्या होता है? जब सेकंड गाना, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, गले में दर्द हो रहा है मेरे को। अब सेकंड गाना खत्म होता है, फिर थर्ड गाना आता है, फिर कर्सर कहाँ आता है? नीचे आता है। और कर्सर नीचे कब तक आएगा? स्ट्रेट बैठ। और कर्सर नीचे कब तक आएगा? जब तक आप लास्ट गाने तक नहीं पहुंच जाते। इसका मतलब कर्सर के द्वारा आप एक बार में एक रो को फेच कर सकते हैं। नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन पॉइंटर एंड कर्सर। नाम क्या है? पूरा नाम बोलिए। शरद कुमार गुप्ता। शरद कुमार गुप्ता। एग्जाम्पल ले लो, शरद में मान लो 5-6 कैरेक्टर होंगे, कुमार में 4-5 कैरेक्टर होंगे, और गुप्ता में 5 कैरेक्टर। जोड़ के देख लो 18-20 कैरेक्टर। अगर मैं अंकल पॉइंटर लगाऊं इस 20 कैरेक्टर के ऊपर, तो पॉइंटर एक बार एक रिकॉर्ड को, एक रो को फेच करेगा और एक एलिमेंट फेच करेगा। तो पहला एलिमेंट कौन होगा? एस होगा। वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, तो पहले एस आएगा, फिर एच आएगा, फिर ए आएगा। बट हम कर्सर फिल नहीं कर पाते। शरद कुमार गुप्ता इतना फास्ट आता, हम समझ नहीं पाते। अब झंकार का आंसर सुनो, वो दीपक झा ने बोले। अब झंकार दीपक से 8+ एक्सपीरियंस रखता है, 8+। वो 5 का है, वो 98 का पास आउट। तो मैं यही सब करता हूं, हर का आंसर सुनता रहता हूं, अपने आप से कंपेयर करता हूं। झंकार बोलता है सब कर्सर को छोड़ो। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, जो है दिन में मुंह पे बोल देता है सब कर्सर को छोड़ दिए कर्सर।
आप लिखो स्टाफ फ्रॉम टेबल। क्या है? जितने रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड आएंगे। इसका मतलब अगर हम लिखते हैं स्टाफ फ्रॉम टेबल ने, तो पीछे भी क्या चल रहा है बोलो? कर्सर चल रहा है, बट हम फिल नहीं कर पाते, इतना फास्ट आता है रिकॉर्ड। शरद, दिन कुमार, छोटू, 5-6 नाम, शरद, अंकल, संदीप, नेहा, मीना, इतना फास्ट नाम आता है, आपको लगता है सारा नाम इकट्ठे आ रहा है। नहीं, रो बाई रो आ रहा है। तो क्वेरी प्रोसेसिंग के पीछे कौन चल रहा है? वो कर्सर चल रहा है। जब से स्टाफ फ्रॉम टेबल से सारे नाम आ ही रहे हैं, तो तू कर्सर क्यों कर रहा है? जब स्टाफ फ्रॉम टेबल से अंकल सारे नाम आ ही रहे हैं, 5 नाम जो मैंने बोला अभी, फिर काम कर्सर से क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे कर्सर के द्वारा मुझे सेकंड नाम चाहिए, मुझे उस टेबल का सेकंड नाम चाहिए। वो सीडी में 16 गाना पड़े हैं, मुझे सेकंड गाना सुनना है। अगर आप अंकल लिखेंगे स्टाफ फ्रॉम टेबल ने, तो 16 पूरा आपको गाना दिखा देगा। आई डोंट वांट टू सी 16 नाम्स, 16 नेम्स ऑन द टॉप, ऑन द डैशबोर्ड। हमें सेकंड नाम चाहिए, तो मैं कर्सर को गाना दो, कर्सर को सेकंड करें। तो कर्सर से क्या होता है? रो बाय रो फिच होता है। दिमाग लगा, एक आदमी का ट्रेन को क्रॉस करते हुए देखना, ये स्टाफ फ्रॉम ट्रेन है। बट उसी आदमी का अपने फादर को रिसीव करना स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम नहीं है। क्यों? वो टिकट देखता, कोच नंबर देखता और बर्थ नंबर देखता, और वो स्टार्ट करता है रो बाई रो, बॉगी टू बॉगी। तो कभी कभी अंकल हमें किसी रो को रो बाई रो एग्जामिन करना है। रो बाई रो एग्जामिन कर्सर का सिंप्लीफाइड मीनिंग होता है इनके लैंग्वेज में ऑडिटिंग। हमें हर रिकॉर्ड को चेक करना है। आप जाके वो बैंक लोन लो, देखो क्या होता है। और आपके 6 मंथ में, आपकी हिस्ट्री में, स्टेटमेंट में तो चेक बाउंस होगी, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट को हर रो बाय रो क्या करता है बंदा? चेक करता है। जब 5 रुपए का स्टेटमेंट आपका चेक बाउंस क्यों नहीं हुआ? आपकी हिस्ट्री खराब होती है। और आप कितने का ट्रांजैक्शन करते हैं, ये भी एक मैनर रखता है। There are several parameters for getting a मोटा लोन, heavy loan from the bank। छोटा मोटा था, अपने क्रेडिट कार्ड से ले लो यार, किसी को फोन कर दो बुला के दे दे। पर जहाँ आप 30-35 लाख का सोच रहे हो, it takes a processing time। तो वहां पे रो बाई रो क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे, चेक करेंगे। चीजों का तेज क्रॉस कर जाना ये भी कर्सर है, बट चीजों का धीरे धीरे क्रॉस करना ये क्या बोलो? ये भी कर्सर है। अगर धीरे धीरे क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब मैं हर रो क्या कर रहा हूं? एग्जामिन कर रहा हूं। बट मैं चाह के भी श्रेष्ठ ऑफ फ्रॉम टेबल से सेकेंड रो फिच नहीं कर सकता। समझ गए? तो व्हाट इज कर्सर? कर्सर लाइक एज ए पॉइंटर विच कैन फिच one row at one time, and what is start from table name? वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक लास्ट रिकॉर्ड तक। मतलब बात ये हो गई कि सीडी में 6 गाना है और हमें थर्ड गाना सुनना है। इधर की मेरी बिहार की थी ममता सिंह, उसका सिलेक्शन अभी हुआ है मरसद गुड़गांव में 8 लाख के पैकेज पे। उसका फोन आया, उसने मेरे से कर्सर पूछा। मैंने कहा बेटे तुमने क्या जवाब दिया? उसका आंसर सुनो सर, एक सीडी में 6 गाना है, मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 6 गाना सुनना पड़ेगा। पहला गाना शुरू होगा, आपको पसंद नहीं है, बट आप इतने अनफॉर्चुनेट हो, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल भी नहीं,
और सेकंड, मैं आपको उस टेप को टच भी नहीं करने दूंगा। और आप कीजिए, आपको चौथा गाना सुनना है, आपको बिना बात पहला गाना भी सुनना पड़ेगा, सेकंड भी सुनना पड़ेगा, थर्ड भी सुनना पड़ेगा। राइट? वो टेप रिकॉर्डर जब तक छठा गाना नहीं बजा देता है तो तब तो कुछ चलता रहेगा। आप मेरे को रिमोट कंट्रोल दे दो यार, हम लिख लेंगे 4, नंबर 4 लिख लेंगे। जैसे 4 लिखेंगे, अब तो बोलो क्या कर्सर कहाँ जाएगा, बोलो 4 पर। तो कर्सर यूज क्यों करते हैं? रो बाय रो ऑडिटिंग करने के लिए। बोलो रो बाय रो ऑडिटिंग करने के लिए। Cursor, we use cursor for manipulating a record row by row. We use cursor for manipulating a record, for manipulating a record row by row. ये मत करना बेटे, सेट ऑफ फ्रॉम टेबल में कर्सर नहीं लगता है। बट वहां पे कर्सर चल रहा है, लास्ट रिकॉर्ड तक तो नहीं आ जाए तो एक कंपनी का ऑडिटिंग अगर बेटे होगा तो कभी स्टाफ फ्रॉम टेबल नेम पे नहीं। तो सीए बैठेगा, आता यहां भी सीए आता है, वो बैठेगा और जो मेरा दिमाग खराब करेगा। अगर दीप्ति गुप्ता अगर क्लास में फीस मांगने के लिए आ गई तो समझ लो 5-6 रुपये का आना बोल यहाँ पे तो सीए आने वाले, इसलिए वो गुस्से में रहती है कि उसको सीए को जवाब देना होता है। और उसमें बैठ के वो दीप्ति का दिमाग खराब करता है, हर रिकॉर्ड को रो बाय रो चेक करता है, फिर उसका इनकम टैक्स जमा होता है, सेल टैक्स जमा होता है। दीप्ति चाहती है फटाफट हो जाए, तो दीप्ति को रोकता है, बेटे ऐसे नहीं, तुम्हें कोई अरोड़ा ही नहीं। वो काफी सीनियर बंदे 50+ है, वो करोड़ बाग से आते हैं, वो नामी सीए हैं, दीप्ति के पूरे बिजनेस का वही देखते हैं, यहाँ कभी नहीं आते, बोलते मैं छोटे मोटे जगह नहीं जाता, तो दीप्ति के द्वारा यहाँ आते। और उस दिन आकर आराम से पानी पीते हैं, आराम से बैग निकालते हैं, मतलब आराम से हर चीज उनका एक सिस्टमेटिक प्लान पे होता है, हर नाम को चेक करते हैं। हम इरिटेट होते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, नहीं, आई वांट टू गो रो बाय। तो कर्सर इज मेड फॉर एनालिसिस, वर्ड होता है इंग्लिश का। कर्सर इज मेड फॉर डायग्नोसिंग अ रो रिकॉर्ड रो बाय रो। Cursor is made for diagnosing the record row by row. Is called analysis. अगर तुम्हें कभी ऐसी चांस मिलती है कि आपको रो बाय रो सर्च करना है, then you do. जैसे राइट ए प्रोग्राम, क्वेश्चन दे, राइट ए प्रोग्राम इन डेटाबेस। क्वेश्चन सुनो, ये गुरुआमा की का क्वेश्चन है। Write a program in database, you can find third record, you can find third record। एक प्रोग्राम लिखो डेटाबेस में, इसे थर्ड रिकॉर्ड को फाइंड करो, और जो भी नाम थर्ड रिकॉर्ड के ऊपर है उसको अपर केस में कन्वर्ट करो। राइट ए प्रोग्राम इन डेटाबेस, फर्स्ट टू फाइंड द वर्ड थर्ड रिकॉर्ड, एंड वॉट एवर नेम कम्स, चाहे नेहा, चाहे संदीप कदम, चाहे अनुराग कर, वॉट एवर नेम कम्स convert into upper case। नाक रगड़ ले, ये काम फंक्शन से नहीं हो सकता। नाक रगड़ लो, ये काम प्रोसीजर से। क्यों? तुम प्रॉक के अंदर क्या लिखोगे? सेट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम लिखोगे। जहां तो सेट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम लिख दिया, अब सारे क्या है? सारे नाम। मैं इस सेंटर में कर्सर यूज करता हूं, सेट ऑफ फ्रॉम टेबल नेम कभी यूज नहीं। मैं हर बच्चे को आराम से देखता हूँ और लगता है बच्चा ठीक है, इसको भेज दो इंटरव्यू पे, और मेरी शिकायत करे, मेरे सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
हमें उसको भेजना है जो डिजर्व करता है। जो अगले बंदे ने एक बार मेरी डांट लगाई थी, मेरे आँख खुल गई। उसने कहा संदीप तू बिना चेक करे बंदे मत भेजा कर यार। ये 2007 की बात है। हमने 9 बच्चे भेज दिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंकल बिना चेक करे। वहां से मेरी इतनी गंदी फीडबैक आई मत पूछ संदीप। मेरा स्टूडेंट बोलता है अब मैं तुम्हारे बच्चे का प्लेसमेंट नहीं करवाऊंगा सर, और थोड़ा गुस्से में। मैंने आपके भरोसे तो रख लिया, सारा काम नहीं कर पा रहा है। आप भेजो मेरे पास, चेक करो। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, इसका मतलब नहीं आप मेरे को मिस यूज करो। उसका ये वर्ड था मेरे। उससे मेरी कान आंख सब खुल गए ना, मैं नहीं भेजूंगा। तुमको जो करना है करो, तुम पढ़ो जाओ यहां से। जो लगता है डिजर्व करता है उसको भेजो। अगला कुछ ही बोलता है अगले को बोलने। मैं इसे मार्केट में उस जगह नाम खराब हो कि आप कॉलेज को चेक करके भेजो। इसलिए मैंने रश्मि अरोड़ा की सिफारिश लगाई तरुण गर्ग से। पर आपको पता है अंकल, मेरे लड़की को बुलाया था उस रूम में, बैठ गौरव को बुलाया था और 5-6 क्वेश्चन पूछे। ठीक लगा, कल जाके ट्यूसडे को इंटरव्यू देगा एंड शी हैज गॉट ऑफर लेटर। हमें आपका नॉलेज को चेक करना पड़ेगा रो बाय रो। तो कर्सर का यूज करेंगे मैनिपुलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, एनालिसिस, डायग्नोसिस के लिए, एंड ऑब्वियसली एग्जामिन के लिए। बोलो कौन? As a master checks the copy, they go question by question and question to question. Then they gives 8 out of 10. एक गधा मास्टर होता है, ज्यादा लिखा ज्यादा नंबर दे दिया। एक गधा माँ गधा मास्टर, कम लिखा कम दे दिया। वो साला पढ़ता भी नहीं तो लिखा क्या है। उसका सोच अलग है, ज्यादा कॉपी भरेगा ज्यादा मार्क्स देगा। तू क्या लगाता है? सिस्टम फ्रॉम टेबल। कैसा अंकल कर सकते? आपको मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू गेट अ थर्ड रिकॉर्ड। अब थर्ड रिकॉर्ड कैसे लिख दूं? वेयर तो लगा नहीं सकता हूं। वेयर कब लगाएंगे? जब नाम डिटर्मिनिस्टिक हो। सिस्टम फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल टू अरोड़ा। अंदर यहां भी चला कर्सर, यहां भी क्या चला बोलो? कर्सर। बट मुझे पता ही नहीं है कुछ उस टेबल के बारे में। हमें रो बाय रो मूव करना है। लेकिन जब आप रो बाय रो मूव करोगे वहां कर्सर यूज करो। सारे रो इकट्ठे मूव करोगे तो स्टार्ट फ्रॉम टेबल। तो सिंटैक्स मेरे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वेट लीजिए। तो डिस्कनेक्टेड जो मैंने बोला, आप डिस्कनेक्टेड को मत देखिए। तो कर्सर वही सीख सकता है जो पॉइंटर जानता है। स्टार्ट पीटीआर +1, स्टार्ट पीटीआर +2 या वाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। दो के बच्चे बी लेवल करें वहां, ये भी ज्यादा पॉइंटर्स आते हैं। तो कर्सर अगर नहीं है, if a man has lost his cursor, मैं आपको मेडिकल साइंस से बता रहा हूं इसका आंसर। व्हाट इज कर्सर? मुझसे अगर पूछे if man has or if any human person has lost his cursor, तो उसको दो चीज हो सकता है, या तो पैरालिटिक अटैक हो सकता है, तो उसका ब्रेन हैमरेज हो सकता है। उसके 2 आईज हैं, उसकी मूवमेंट बंद है, उसका हार्ट चल रहा है। इज ए ब्लड क्लॉटिंग इन दिस ब्रेन। तो तुमको देख रहा है, उसके ब्लड से, आंख से ब्लड निकल रहा है, तो उसका अटैक हो चुका ब्लड पे, आईज के ऊपर। पैर है, पैर काम नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं है। बोलो कौन है? जहां कर्सर नहीं है वहां मूवमेंट नहीं।
तो कर्सर का सिंपली फाइट इंग्लिश क्या मिला बोलो, मूव। कैसा लगा? कुछ हो गया? ये सब दिन में नहीं पढ़ा सकते हैं, रात में नहीं पढ़ा सकते। सुबह डायरेक्ट भगवान का वो रहता है, विद्या ऊपर से आती है। तो कर्सर इज फॉर मूवमेंट। कर्सर चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, बट इतना फास्ट पोजीशन चेंज हो रहा है उसको हम फील नहीं कर पा रहे। वो क्या है? से स्टार्ट फ्रॉम टेबल। चलो कम बैक टू डिस्कनेक्टेड। 2 मिनट का ब्रेक लें। कौन सी बढ़ रही है मेरी काफी ठंडा गर्म। डिस्कनेक्टेड वर्ड को आप छोड़ दो दिमाग से। आपको मैंने एक चीज सिखा दिया, हम लोग परसों मिलेंगे। अभी रुक जाओ प्लीज, क्लास चल रही है, देख लिया करो यार। डिस्कनेक्टेड का मतलब ये है तुम किससे कनेक्ट कर रहे हो। हम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर रहे, हम उस बीच के बंदे से कनेक्ट कर रहे हैं। हमने लिया रेंट पे नहीं, सेंटर एक मीडिएटर आता है। हमने मकान मालिक से एक बार मिले थे बस, 2006 में। 6 साल हो गए, उनसे मेरी मुलाकात अब तक नहीं हुई। कोई भी प्रॉब्लम होता है, रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, आई कनेक्ट टू मुकेश, ही इज ए केयर टेकर। हम उसको जानते हैं 6 साल से। हम मकान मालिक से बस एक बार मिले थे एग्रीमेंट के समय। हाँ ड्यूटी मिलती रहती, हम नहीं मिल पाते, हम नहीं मिलते हैं। और संडे कोई बंदा भी नहीं मिलता है। सारे क्लाइंट किससे मिलते हैं? उस बीच के बंदे से। तो डेटा सेट को समझना है। और हाँ, मैं आपको जानता हूँ अंकल, 2 बजे के बाद आप मेरी कोई क्लास मत करो। 2 से 5 जो हमने पढ़ाया उसको वहां बैठ के प्रैक्टिस करो। 1 बजे तक मेरी क्लास करो। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो 1 बजे तक मत करो। सुबह वो बैच, वो भी टॉपिक आएगा, कभी ना कभी। 1 से 2 लंच, 2 से 5 ओनली गो फॉर प्रैक्टिस। जैसे सर्कल पढ़ाएंगे, कर्सर सर को मारो, बोलिए ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम बैठ के अपना कर्सर बना के देखते हैं। अटेंडिंग मच एंड मोर बैच, यू आर क्रशिंग योर लॉजिक। तुम लॉजिक खराब कर रहे हो। एक आदमी मंदिर में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक अगर वो कीर्तन कर रहा है या किसी को सुन रहा है, वो अपना काम दिनचर्या खराब कर रहा है। मंदिर उतना ही देर अच्छा लगता है जितना लोग पूजा करते हैं। हेलो, हाँ बेटा बोल। बेटा कल सर बोलो, कल सर, ठीक है। तुम्हें को शाम को टाइम दे, ठीक है। हाँ 9 बजे के बाद, ठीक है। तो डिस्कनेक्टेड का आपको नाम मिल गया, बोलो डेटा सेट। अब क्लास परसों होगी मॉर्निंग में 8 बजे। मैं वेट नहीं करूंगा बिकॉज उनको जाना ऑफिस, इज गेटिंग लेट और मेरे इसका बंदा है। तो रेट सॉरी, अब आपको 2 दिन तक डेटा सेट पढ़ना, नो प्रोग्राम्स। व्हाट इज डेटा सेट? तो डेटाबेस को समझा आपने, टेबल समझा, प्राइमरी की समझी, नॉट नल समझा, फॉरेन की समझा, एसक्यूएल क्वेरी समझा, फंक्शन समझा, प्रोसीजर समझा। वैसे अब तुम 2 दिन क्या समझो? उस बीच के बंदे, मैं जिससे डील कर रहा हूं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू आई एम डीलिंग, वो अच्छा डील नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट मकान मालिक से बात करूंगा। तब बेटा मुझसे सीख पाओ। तो डोंट गो फॉर edu.net। नेक्स्ट 2 days you think only for data set. What is data set? How data set is made? To my say it's a data set, a feature of data set, drawback of it, everything on the net. Everything on the net. ये बेटे जो मैंने फेसबुक के ऊपर नोट्स जो पेस्ट करे हैं, हमें नहीं पता बच्चे उसका क्या करते हैं। हमें ये पता है वो मेरा संग्रहालय है, वो मेरा म्यूजियम। हम जब भी फ्री होते हैं हम उसी को पढ़ते हैं। नोट्स डाला है, हम बच्चों को खुश करने के लिए नहीं डाला है। अपना जितनी मन की बातें हैं वहां मेरी पड़ेगी और मैं उसी को खोलता रहता हूं 6 महीने से, वहीं से पढ़ता हूं। संग्रहालय म्यूजियम बन गई। तो डेटा सेट क्या है ये पढ़ेगा और पेपर पे लिखो व्हाट इज डेटा सेट।
तू देखेगा बेटे, तो 5-6 लाइन के बाद नहीं लिख पाएगा। उसके बाद एमएसडीएन खोलो, नो एनी अदर लिंक्स, ओनली एमएसडीएन, गो टू गूगल, व्हाट इज डेटा सेट। ठीक है, तो आज पूरा दिन और कर्सर पढ़ना है और डेटा सेट पढ़ना है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, बोलो 5 मिनट के बाद मैं क्लासरूम में। अब क्या शुरू कर रहा हूँ, बोलो टूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पढ़ के आना है, और डोंट अटेंड एनी बैच आफ्टर 2 o'clock। इतना बेटे बैच मत करो, ये आपकी अपनी पढ़ाई करो। ये देखो, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज करो। तो मैं सेंटर में कितने घंटे क्लास कर रहा हूँ और मैं कितना घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऐसा ना क्लास के चक्कर में प्रैक्टिस छूट जाए। बैलेंसिंग नहीं करोगे, खराब हो जाओगे। चलो बेटे, ये काफी अच्छे दोस्त के बंदे हैं और काफी सीनियर बंदे हैं, क्लास से बाहर निकल और मेरे एज के बंदे हैं। प्लीज इनको आप रिस्पेक्ट दो, आप प्लीज टाइम पे आओ। आप टाइम पे आओगे, नहीं आओगे तो उनकी जॉब में दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको लिंक दिखाता पढ़ना कहां से। ये वर्ड को पढ़ना ही नहीं, ना इसको पढ़ना है। बस पढ़ना क्या है, बोलो ओनली वर्ड। 15-16 पन्ना लिखो, जो पढ़ते उसको लिखो जरूर, याद रहेगा। बस तेरा अभी पॉइंटर, तेरी बिंदु, कर्सर डेटा से जाके रुक जाए। ओके, अब तुमको देखो, मैं 5 मिनट का डेमो देता हूं, देखो मैं कैसे बोलूंगा। ऐसा ही डेमो दे रहा हूं, ठीक है सर। डेटा, ये मैं जो बोल रहा हूं ये कहीं आप फिट है। व्हाट इज डेटा सेट? इट इज ए सबसेट ऑफ डेटाबेस। सुनो, लिखो मत यार, आप अपना पढ़ के लिखना, अभी मेरा सुनो। व्हाट इज डेटा सेट? इट इज ए सबसेट ऑफ डेटाबेस। It is a subset of database. Doesn't mean it's a database. It is behaving as a database. Database is a collection of tables. Similarly, data set is a collection of tables. The purpose of learning a data set, I connect once to database, or according to my requirement is called abstraction or filtering in a process. According to my requirement, I connect to database, get desirable tables, concerned tables, important tables, and keep in a data set. Like sir, my project is this. I want to make this web page. This web page needs 3 tables. I know what are those tables. To make this web page, I want 3 tables. Take an example, 3 tables. Starting controls will have first table information. In between controls, I will have a second table informations, and third similarly. So why not we can get 3 tables and hold into what? One data set. तो आप वहां पे प्रोजेक्ट के लेवल से जवाब दो. So otherwise I have to directly communicate to what? Database. My keychain of the flat is called data set. It is being maintained by the wife or the mother. Plausible yes. I will say mother. Plausible yes.
She knows the business logic of kitchen. She knows the requirement and the crisis of planning management. In a month, she connect to any shop for ration wala, provision store, and she gets item and hold into kitchen. Every day in the morning, we write a business logic. What is that? It's called preparation of items. It's called morning lunch, breakfast. For this preparation, doesn't mean she every day morning connect to the shop. She keeps the important items in a kitchen. So kitchen is a subset of the main shop. Sometimes there are something I require every day as a doer. So I doesn't mean I want to say I want to go for completely disconnected mode. Freeze operation, connected mode. Because I cannot preserve every moment the current in the inverter. Inverter battery is called disconnected mode, called data set. Why? I preserve the current. So in a one home, I use both connected or disconnected. But I can preserve the rice or the chawal. So data set is a collection of tables. It means there are two ways I can make my front end. One front end directly to database and one front end to data set. When? In this front end, I have got save ka button, update ka button, delete ka button, search ka button. I taught in a morning batch how I can go for searching a data. You can check the copy even though by where clause with a SQL query and even though with a stored procedure with a variable name, copy checker copy. Uncle, why do we search a data by connected mode? Why do we search a data by connected mode? When she has got items in the kitchen, why we go to shop to search? Insert, update, delete, you do via connected mode. For safer transaction. And searching, you go via disconnected mode. Doesn't mean I don't want to go searching always via disconnected mode. But there is a condition when I can go for searching by connected mode. I said last even though half an hour before. If record change frequently, I want to go for searching a record even though via connected mode. As mutual funds, stock exchange, weather forecasting, every second if the plane moves in the air. Second matters, no. Millisecond matters, no. Microsecond matters. He wants to get every microsecond weather information because they moves in kilometer in second. If the pilot is not getting the weather information every microsecond or millisecond, he can have crash of the plane. There is a complete vacuum of air. He cannot see even though he can see, but planes needs to see in a microseconds because there is a velocity in seconds, not in minute and not in hour. He wants to get every moment weather informations. Is called connected mode. So if any record change frequently, even though I will go for searching a record via connected. It depends on my project, shall I go for connected or disconnected. But table data does not change because
transaction is made, because admission is made, admission is done. Why do we go for searching a data by connected mode? I will go for searching a data by what? Disconnected mode. Is called data set. It means, what is data set? Think logically now. So uncle, so far, what operation you have done in database? What operation you have done in database? Do same persona in data set. Means, how I can go for inserting a record in database by execute non-query. Okay. How I can go for updating a records again by execute non-query. How I can go for deleting a record again via execute non-query. How I can go for searching a record by where clause. How I can go for joining two tables by inner join or others join. Means, what persona you know about database, do same by what? Data set. In mathematics, LHS is equal to RHS. We keep right database RHS, we keep what? Left what? तो बेटा जो तुमने डेटाबेस में करा है वो तो सारा काम बोलो कहाँ से करो? डेटा सेट से करो। हमने जो काम एक जमाने में हार्ड डिस्क से करे थे, आज वो किससे कर रहे हैं? बोलो पेन ड्राइव से कर रहे हैं। सो दैट आई विल नॉट फील द एब्सेंस ऑफ हार्ड डिस्क। 3-4 क्लास में क्या होगा? जो हमने काम डेटाबेस से करे थे, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, सर्च का, जो भी करे थे, वो सारा काम लोग किससे करेंगे? डेटा सेट से करेंगे। इसलिए मुझे पता है, मैं इंटरव्यू देने जाऊँ इस वक्त, इवन तो एज ए फ्रेशर जाऊँ, 99% बंदे सारा काम डेटाबेस से जानते हैं। 1% बंदा होता है आईटी इंडस्ट्रीज में, डेवलपर्स को छोड़कर, को छोड़कर, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, दे गो बाय सर्च, दे डू ऑल द ऑपरेशन बाय व्हाट? डेटाबेस। उनको ये नहीं पता होता डेटा सेट से रिकॉर्ड कैसे फेच करें, वहां कैसे फेच करें, बच्चा वाला काम। CMD डॉट कॉपी देखो खोलकर, एग्जीक्यूट रीडर किसको देगा? डेटा रीडर को देगा, वाइल RD डॉट रीड। इसलिए आईटी में NCR में बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? एक मास्टर की सिंपल फिलॉसफी होती है, जितना जल्दी हो सके कोर्स को कंप्लीट करो। उसको बच्चों से कोई सिंपैथी नहीं होता, कोई अफेक्शन नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। बस उसका लगाव है मेरे को इस घंटे में इतना कोर्स कंप्लीट करना। उस चक्कर में मेन टॉपिक क्या छूट जाता है? बोलो डेटा सेट। एंड दे गिव्स ओनली लिटिल बिट आइडिया ऑफ दी व्हाट? डेटा सेट। बट तुमने बेटे अभी 3-4 क्लास में यही होगा, जो हमने डेटाबेस से करें वो डेटा सेट से। इतना तुमने बोल दिया। अब मैं जो बोल रहा हूं आपके लिए, अंकल के लिए और राम के लिए, हमने इसको सारी कहानी बता दी। डेटा सेट क्या है? मेरी लैपटॉप की बैग डेटा सेट, मेरा सफर जर्नी का सूटकेस एक डेटा सेट। हम पूरे मीरा को लेकर नहीं जा सकते हैं जर्नी, जो काम की चीजें वो लेकर जाएंगे जर्नी। ये मेरा बिजनेस लॉजिक है। अच्छा, हम डेटा सेट से बिजनेस लॉजिक कर सकते हैं। व्हाट इज बिजनेस लॉजिक? किसी काम को करने का सारा ऑपरेशन। एक डॉक्टर जब घर पे आता है और उसको बुलाते हो, उसके पास एक बैग होता है, सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स उसमें होते हैं। हमें याद हो बचपन में अपने पापा का वो बैग खोलता था, पापा गुस्से में आता था, अचानक गुस्से में, बेटे इसको मत खोलो। इसमें सारा आइटम ऑपरेशंस का है, आप इसको बिल्कुल टच मत करें। मैं छोटा सा ज़्यादा घर में था तो मेरी हैबिट थी वो खोल देना, उससे खेलना बैठ के, छोटा होता था ये सब करते रहना कुछ। इसको बेटा मत छोड़ो। कि मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ और मेरे पास हार्ट के पेशेंट होते हैं, हमें हर चीज़ में होना चाहिए। तो अब उसके बाद से ये लड़का सुधरेगा नहीं, तो घर में जान के लाते नहीं थे। तो उनका बिजनेस लॉजिक था। सेकंड सुन लो बेटे, एक वकील अपने सब कुछ रखता है, धारा नंबर 403, 406, उसको अपना बिजनेस लॉजिक पता है। अंदर में किसी को मकान दिलवाना है, इनको क्या क्या उनसे मांगना है, इनके पास इनकी बिजनेस लॉजिक है। बिजनेस लॉजिक का सिंप्लीफाइड हिंदी होता है
किसी काम को करने का विधि, बिजनेस लॉजिक। और डेटा सेट से हम अचीव कर सकते हैं बिजनेस लॉजिक। क्यों? कल तक हम डेटाबेस से अचीव करते थे, आज किससे अचीव कर रहे हैं? क्यों? हम डेटा रीडर से बिजनेस लॉजिक क्यों अचीव नहीं कर सकते हैं? अब लोग साला फंस गए थर्ड राउंड में जाकर। हम डेटा रीडर से बिजनेस लॉजिक अचीव क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इसलिए डेटा रीडर से बिजनेस लॉजिक अचीव नहीं कर सकते। डेटा रीडर हर काम नहीं कर सकता। My Dipti is sent for the center as a business logic. My brain is for center as a business logic. और जितने लोग हैं ये मेरे सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको मुझे काम करने के लिए बोलना पड़ता है यार। मैं इन दोनों को काम करने के लिए मुझे बोलना नहीं पड़ता। ये नहीं कि मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता, ऐसी बात नहीं। मेरी सोच इनकी सोच से मिलती है। मैं इनके बिहाफ में भी काम कर सकता हूं और ये मेरे बिहाफ में भी काम कर सकते हैं। ये क्या बोलो? बिजनेस लॉजिक। टू परफॉर्म द ऑपरेशन, टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन और एनी टास्क, छोड़ दो ऑपरेशन वर्ड, टू परफॉर्म एनी टास्क you have all ingredients। नहीं बोल पाते बिजनेस लॉजिक। सर बताओ चाय बनाना है, चलो चलते हैं किचन में। सर किचन क्यों जाए? आप बताओ, आपके पास दूध है, शक्कर है, चाय पत्ती है, कंटेनर है, सब कुछ है, सिलेंडर है और से चाय पिलाते हैं आप। तो परफॉर्म वन टास्क आई हैव गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स, इसको सामग्री, इसको बिजनेस लॉजिक। अगर हम डेटा सेट में गुरुजी टेबल को डाल देंगे, पता क्या होगा? हम सारे काम कर सकते हैं। रियली सर क्या बात कर रहे हो? आप लिखो क्रिएट डेटाबेस और एक बना टेबल, हम यहाँ लिखते हैं डेटा सेट और हम दोनों बहस करते हैं। बोलो क्या चाहते हो? इंसर्ट, हम इंसर्ट करेंगे यहाँ से, आप भी करो हम भी करते हैं। अपडेट आप भी करो हम भी करते हैं। आप भी करो डिलीट, हम भी करते हैं डिलीट। आप भी करो सर्च, हम भी करते हैं सर्च। इसलिए कहा गया है डेटा सेट इज ए सबसेट ऑफ डेटा। गुरुजी आप डेटा रीडर से सारे काम नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? वो रीड ऑनली है एंड फॉरवर्ड ऑनली है। उसके पास कर्सर है। अंकल कौन सा कर्सर है? फॉरवर्ड ऑनली कर्सर है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो डेटा रीडर को संज्ञा नहीं मिला इसका बिजनेस लॉजिक। उसमें दीप्ति बैठती है, आई फील 100% कंफर्टेबल। उसके अलावा कोई भी बैठे, आई फील 100% अनकंफर्टेबल। वाई? शी नोज हाउ टू रन द बिजनेस। उसका आंख हर जगह होता है। तो दीप्ति गुप्ता है। लाइट नहीं रहेगा अंकल, उसको क्राइसिस नहीं फील होगा। इतनी गर्मी होती है, स्वेटिंग निकलती है उसकी बॉडी से, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। क्यों? उसका अपना बिजनेस क्या बोला? अपना बिजनेस। वहां मैं किसी को बैठा दूं, इवन दो वाइफ को भी, शी फील्स अनकंफर्टेबल, ऐसी लगाओ तुम। पर दीप्ति जब बैठती है उसको मतलब नहीं, उसको काम करना है यार। शी हैज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस और काम करा चलती बनी। क्यों? अब वो जाके अपने हस्बैंड के बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगी। इन अ डे शी राइट्स मल्टीपल बिजनेस लॉजिक, बट इफ शी गो फॉर क्राइसिसिंग और शी गो फॉर फाइंडिंग क्लूज नेगेटिविटी, वो काम फिर नहीं करता। उसके अंदर समय नहीं होता कि चीजों को निगेटिव करना। तो डेटा सेट का संज्ञा डेटाबेस को मिला पहले जमाने में, और आज के जमाने में इसको मिला डेटा सेट। और ट्रेनिंग लेवल पे अगर सक्सेना है हमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग लेवल ये तो हुआ मैनेजमेंट के लेवल पे। अब ट्रेनिंग के लेवल पे अगर सक्सेना है मुझे कोई इशू नहीं।
पॉइंट का इश्यू मेरे पास नहीं। आई ट्रस्ट 100% ऑन सक्सेस इन एजुकेशन सिस्टम, नॉट फॉर मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज बंदा मैनेजमेंट कैसे देखेगा। अंकल हर आदमी अपने फील्ड का अगर वो उस्ताद है तो क्या बोलो, बिजनेस लॉजिक। तो डेटा रीडर कैन गो फॉर फेचिंग अ रिकॉर्ड, you can fetch a record by data reader, but beta you cannot perform all the operations which are expecting by data reader. ठीक है, if you have to go for data set। हाँ, अगर आपको सिंपल फेचिंग करना है किससे कर लो, डेटा रीडर से। मल्टीपल ऑपरेशन करना है या तो डेटाबेस से करो या तो डेटा सेट से करो। मुझसे पूछा जी एक वेब पेज है, बिल्कुल है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, बिल्कुल, आगे बोलो। एक टेबल का रिकॉर्ड फेच करके लाओ ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में। ये क्वेश्चन था फाइजर का 4+ के बंदे से, नहीं बोल पाया। उसने ये बोला हम टेबल को लाएंगे डेटा सेट में और फेच करेंगे डेटा सेट से। अंकल आप टेबल क्यों ला रहे हो डेटा सेट में? आपको मैंने कहा डोंट माइंड एक रिन साबुन दो, आप मुझे बताओ रिन साबुन बड़े वाले बकेट में क्यों दे रहे हैं? क्या आपका सोप केस नहीं है? When you have a requirement of holding multiple tables, then you go for data set. आपसे मैंने 1 गिलास पानी मांगा था, आप बताओ जग में लेकर क्यों आए? आपको मैंने कहा एक वेब पेज के ऊपर एक टेबल आनी है, आप उस टेबल को क्यों लेकर आए डेटा सेट? एक टेबल चाहिए ना, क्या यूज कर लो, डेटा रीडर। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट एड ब्रैकेट में RD0 काला कॉलम। जहां मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हो वहां किसको यूज करो? मल्टीपल रिक्वायरमेंट कहलाते हैं बिजनेस लॉजिक। एक चाय बनना बेटे याद रखना लाइफ में, एक चाय बनना बिजनेस लॉजिक नहीं। बिजनेस लॉजिक वो है तो मुझे पूरा खाना बना के दे, तुम्हारी हालत खराब हो गई, और उसके बाद एनालिसिस और तुम्हारा फीडबैक। कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करना बोलो क्या है, बिजनेस लॉजिक। उस टास्क का बेटे एक छोटा सा सब रूटीन बोलो कौन है, एक चाय, राइट। तो सरल टास्क एक छोटे से काम बोलो कौन कर सकता था, डेटा रीडर भी कर सकता था, डेटाबेस तो कर ही सकता था, पर हमने किससे किया बोलो, डेटा सेट से। आज मेरी पेन है परफेक्ट बिजनेस लॉजिक है, कौन सा चीज क्या चीज कहाँ कॉपी करना है। हम हार्ड डिस्क कैरी क्यों करो यार, हम पेन ड्राइव कैरी नहीं कर लेंगे पेन ड्राइव। ठीक है, एक टास्क कंप्लीट करना बेटा बिजनेस लॉजिक में, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना बोलो क्या बिजनेस लॉजिक। अच्छा एक काम कर, इस वेब पेज पे ये टेबल लगेगा, चल ठीक है, अगला चलो वेब पेज के ऊपर, सेकंड वेब पेज पे ये टेबल चाहिए, ओके, थर्ड वेब पेज पे गए वो टेबल चाहिए। अच्छा कितने टेबल हो गए, 3 टेबल। कितने वेब पेज हो गए, 3 वेब पेज हो गए। मतलब कितने डेटा रीडर हो गए, 3 डेटा रीडर हो गए। क्यों, हम एक टेबल को एक ही बार ला सकते हैं बोलो किससे, डेटा रीडर से। एक गिलास लेकर आई पानी, अच्छा लगा। बाहर 3 बंदे बैठे हैं कि तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो बेटे, आप 3 बार पानी क्यों लेकर आ रहे हो? एक ट्रे खरीद दो यार, और 3 गिलास का ना दो ट्रे के अंदर रख दो यार। तो सिंगल टेबल पे काम करना है, आप बेशक का यूज करो डेटा रीडर, बट मल्टीपल टेबल पे काम करना है। आप उसको क्या देखा, मैथमेटिक्स देख, एक डेटा सेट 3 टेबल, या 3 टेबल 3 डेटा रीडर। ग्राम एक डेटा रीडर में 2 टेबल नहीं हो सकते। तो जाओ एक बड़ा सा सोप केस खोजो और 3 साबुन उसके अंदर है, बट तुमको एक साबुन चाहिए, ये वाला सोप केस लेकर जाओ। तो ये सब आपके आते हैं प्रोजेक्ट राउंड।